और वो फ्री मूव कर रहा है। ठीक है। Another feature is auto LSD. ठीक। Hello friends, welcome to my channel My Himalayan Drives, and this is episode 2 of Hilux Mastery course. I have got Shefali again with me. If you have not seen episode 1, I'll say that go and have a look into the episode 1 where we talked about two-wheel drive, four-wheel drive, how to identify the model type, and at the same time, on a request, gave a little bit glimpse of what off-roading is. She had some practical lessons on off-roading, and we ended up the episode where Shefali promised that she's going to go through the owner's manual. So, Shefali, are we ready for our next episode, episode 2? We are, but homework not done. I'll not do that. That is for which I've engaged him for. I'll not do the homework. So, padhai is not my cup of tea. So you have to bring it all to the table directly. Okay. Okay, that's disheartening. That is. I helped you in mopping the floor, cooking food, and still you didn't get But you time. ate it all. So no, I cannot study. I will not be able to make time for it. So he's gonna give it to me all cooked and served on the table. So that is how it will go. Okay, so ठीक है, अब तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, बट बेसिकली मैं बता देता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग, इफ़ यू वांट टू डू ऑफ रोडिंग, देर आर फ्यू फीचर्स यू शुड नो, and since you will be doing off-roading in Hilux, so those features will be related to Hilux. So basically there are some general topics which apply to all four-wheel drive sessions, Okay. any type of vehicles, but there are some which are specific to Hilux. Okay, ठीक है. so if you look here, basically this one is traction control. TRC if we long press it, नहीं तो Traction LSD. traction control, you know it. ठीक है. Another feature is auto LSD. ठीक है. Another feature where I would like to have your focus is this one. This is two-wheel drive, right? ठीक H2. है. ठीक है. अगर मैं इसे इधर स्विच कर देता हूँ तो ये this is 4 wheel जो कि हमने अभी लगाया था, 4 high 4 high और फिर 4 low. and then this one is 4 low, ठीक है. right? ठीक है. And the another feature is this one, rear deflock. Okay. This one is rear deflock. फिर उसी के साथ एक फंक्शन और टोयोटा देती है, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, DAC, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, right? Okay. The last option in off-roading which is going to help us is normally you are driving in drive mode, right? Drive mode. There is a S option, right? Okay. S option. अगर आप स्क्रीन पे देखो तो S4 लिख के आ गया, D S4, and basically S is like you are putting your vehicle into manual mode. Okay? तो शिफाली, आज हम सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो एलएसडी के बारे में बात करने वाले हैं. आई थिंक पिछले एपिसोड में तुम्हें थोड़ा सा फील मिल गया कि ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, एलएसडी क्या होता है. दिस वन, ठीक है. सो दिस इज जो ये ट्रैक्शन कंट्रोल बाय डिफॉल्ट टोयोटा में इनेबल्ड होता है. इफ आई प्रेस दिस बटन, प्रेस एंड होल्ड इट तो TRC ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है. ठीक है. और अगर मैं प्रेस करके छोड़ दूंगा तो LSD एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा. ठीक है. सो you can disable both traction control and auto LSD, but अगर यूज करना है तो either you will get traction control or you will get auto LSD, right? अच्छा, अब थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं. ट्रैक्शन कंट्रोल, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल होता क्या है? ठीक है. राइट. सो ट्रैक्शन कंट्रोल इन टू व्हील ड्राइव मोड, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल इन फोर व्हील ड्राइव मोड, एंड टू व्हील ड्राइव इज पावर पीछे दो पहियों को जा रही है, इन अवर केस रियर व्हील्स, और एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल इन फोर व्हील ड्राइव मतलब इंजन पावर दोनों को जा रही है. ठीक है, मेक सेंस, राइट. सो बेसिकली ट्रैक्शन मींस कि पहियों को थोड़ा सा ट्रैक्शन चाहिए, थोड़ी सी हार्ड सरफेस चाहिए, सो दैट इट कैन मूव द व्हीकल. नाउ अगर वो लूज हो जाता है, which can be because of loose sand or it can be because of snow or mud, अगर वो पहिया फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है तो इंजन की जो पावर है वो सारी उस फ्री मूविंग व्हील को जाने लग जाती है. और जो पहिया जिसको ट्रैक्शन मिला हुआ है, which can make the vehicle move, उसको सारी पावर कट हो जाती है. राइट. दैट इज हाउ नॉर्मली अ व्हीकल ऑपरेट्स. कैसे होता है? पीछे एक कंपोनेंट होता है डिफरेंशियल, वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, बट डिफरेंशियल जो है वो इंजन की पावर को दोनों पहियों में स्प्लिट करता है. राइट. अब होता क्या है, एक पहिया फ्री मूव हो गया तो डिफरेंशियल की सारी पावर इंजन से उसी पहिए को जा रहा है. राइट. इन फोर व्हील ड्राइव अगेन आगे पीछे दोनों तरफ पावर जा रही है, बट जो फ्री मूव कर रहा है उसी को पावर जाएगी. राइट. सो ट्रैक्शन कंट्रोल और एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में करता क्या है सिस्टम, द टोयोटा सिस्टम, द wheel which is moving freely
इंजन ट्राइज टू अप्लाई ब्रेक ऑन इट. ठीक है. तो जब उस पर ब्रेक लगाएगा तो डिफरेंशियल विल ट्राई टू शिफ्ट द पावर टू द व्हीकल टू द व्हील व्हिच इज नॉट फ्रीली मूविंग, राइट. तो इन ट्रैक्शन कंट्रोल जो व्हील फ्री नहीं है उस पे जाएगा. इन एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल आगे पीछे में से जिनके पास ट्रैक्शन है उनको जाएगा. जो फ्री मूव कर रहा है उस पे नहीं ब्रेक लगाएगा. ओके. It will try to apply the brakes. So it is not very effective in extreme off-roading conditions, but in minor off-roading जहाँ पर थोड़ी बहुत loose sand है, जहाँ पर vehicle को थोड़े से traction के साथ बाहर move कर सकता है, यहाँ पर traction control comes in handy. Okay. Right? Okay. Okay. Compared to traction control auto LSD, different. ऑटो एलएसडी सिर्फ रियर व्हील ड्राइव मोड में ऑपरेट करता है. सो यू डोंट गेट इट इन 4 व्हील ड्राइव मोड, यू गेट इट ओनली 2 व्हील ड्राइव मोड. ठीक है. इन 4 व्हील ड्राइव मोड यू गेट ओनली एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल. ठीक है ना. हाँ जी. अब होता क्या है कि एलएसडी हाउ इट इज डिफरेंट. ट्रैक्शन कंट्रोल में क्या हुआ, इसने ब्रेक लगाई. अब ब्रेक लगाई उसके बाद उसने ब्रेक ऐसा नहीं लगा करके छोड़ देता है, ब्रेक अप्लाई करता है और फिर ब्रेक हट जाती है. सो एवरी टाइम, अब पहिया तो फ्री मूव कर रहा है तो उसे बार बार ब्रेक लगानी पड़ेगी. तो इन बिटवीन दो साइकिल्स जहां पर वो ब्रेक लगा रहा है फिर वो ब्रेक छोड़ दी फिर ब्रेक लगाई, उतने के बीच में फिर से इंजन की पावर उसी फ्री व्हीलिंग फ्री मूविंग व्हील को चली जाती है. एंड दैट इज हाउ यू आर नॉट एबल टू गेट द कंप्लीट ट्रैक्शन ऑन द अदर व्हील, राइट. ठीक है. क्योंकि वो साइकिल है, ब्रेक लगाएगा फिर छोड़ेगा फिर ब्रेक लगाने के लिए उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर बनना चाहिए एंड ऑल. ठीक है. मेक सेंस. रेडी फॉर द प्रैक्टिकल. फॉर नाउ यस. ओके, लेट्स गो. ओके. मैंने अभी ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर दिया है. ठीक है. Okay. कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ये 2 व्हील ड्राइव मोड में है. दिस व्हील इज स्पिनिंग क्योंकि इसका ट्रैक्शन जा चुका है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है. सो दिस इज हाउ टोयोटा परफॉर्म्स. अगर आप देखो ये वाला व्हील रोटेट कर रहा है, इस व्हील पे ट्रैक्शन है बट दिस इज नॉट गेटिंग एनी रोटेटिंग टॉर्क. दिस इज मूविंग फ्रीली और दूसरा वाला मूव ही नहीं कर रहा है. शिफाली, अब हम सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन देते हैं, राइट. प्रेस दैट बटन. या अभी वो लाइट चली गई है, मतलब ट्रैक्शन एक्टिव ट्रैक्शन ऑन है. ओके. सो कार अपने आप इसको करेगी. सो जो फ्री है उसको वो ब्रेक लगाएगी और जिसको ट्रैक्शन मिल रहा है उस पे पावर जाएगी. सो लेट्स ट्राई इट नाउ. चलो आप पीछे करो. बस, राइट. यू वर एबल टू ड्राइव के साथ ट्राई करते हैं. ठीक है. ट्राई टू रिवर्स द व्हीकल. ओके. ठीक है. आई विल ट्राई टू रिवर्स द व्हीकल. I got reversed. So this was without traction control. लेके जाओ. अब फंस गई. Stuck and now sinking. I can feel that the vehicle is going down. Then let's try traction control एक बार. Now TRC turn on. TRC turned on. Let's see. TRC is on. और रिवर्स नहीं, ड्राइव लगाऊं? नहीं, रिवर्स ही ट्राई करते हैं, पीछे लेके जाते हैं. ठीक है. रिवर्स कर रही हूँ. Okay. No, it's not going. फुल थ्रॉटल है. इट्स नॉट गोइंग. ओ चली गई. यू आर फ्री. पीछे थोड़ा और करो. आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल मूव फर्दर. इट्स किडिंग नाउ. इट्स अब तो अच्छे से जा रही है. ओके. वी हैव द ग्राउंड समवेयर. ओके. सो बेसिकली दिस वाज ट्रैक्शन कंट्रोल जो मैं basically दिखाना चाह रहा. So you must have felt some jerks when it activates, right? Yes. And it took the ground as well. I mean somehow I feel कि पहले जैसे वो मिट्टी में रोल होती जा रही थी, अचानक से it had a ground to move. Okay. हाँ. Okay. But for now it was good. Any final comments on traction control? You know traction control what it is? Traction control is basically when one of your wheel is rotating, it intermittently tries to break your wheel and give all the power to the other wheel. That is traction control. Stuck again in traction control. ऑटो एलएसडी लगा और निकल जा. ओके. जा रही हूँ.
LSD में क्या करता है, जब इंजन को पता चल गया, सिस्टम को पता चल गया, नॉट इंजन, सिस्टम को पता चल गया कि वन व्हील इज मूविंग फ्रीली, तो इंजन क्या करेगा, उसकी पावर ही कट कर देगा. सो द सिस्टम आइडेंटिफाइज and it cuts the rotating power to that wheel and it tries to shift that power to the other wheel. तो basically इस केस में क्या हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ही उस व्हील को हो गया जो चल पा रहा है. And that is how LSD is more capable than traction control, right? So that limited slip differential is more capable than traction control. In my experience, I am not sure about experts, happy to get feedback, but in my experience, compared to traction control, LSD is more capable. I'll repeat, traction control और auto LSD दोनों rear wheel drive mode में ही ऑपरेट करते हैं. They don't operate in four wheel drive mode. Four wheel drive mode में active traction control काम करता है. ऑफ हो गया. अब एक बार दोबारा ट्राई करो रिवर्स में, ठीक है? राइट, यू आर स्टक. अब ट्रैक्शन की जगह हम LSD करते हैं, राइट? सो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ही है, अब LSD आ गया. LSD इज लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल पे वो ब्रेक लगाता है जो फ्री कर रहा है, ठीक है, जो पहिया फ्री मूव कर रहा है, जैसे इस केस में लेफ्ट वाला, उसमें वो ब्रेक लगाता है. LSD में ये क्या करता है, इंजन पावर ही उस पहिए को देगा जो फ्री नहीं है. ओके, सो डिफरेंस इज वो ब्रेकिंग नहीं लगाएगा. It will shift the power to the one which is not freely moving, जिसके पास ट्रैक्शन है. Okay? And let's see कि LSD में आप पीछे जाते हो तो कैसे जाते हो. Okay? And you have to feel it कि रिवर्स में कितनी आसानी से गई compared to traction control. Okay, let's try. So this was LSD. Stay tuned for more to follow. Do provide us your feedback and please like and subscribe the channel if you like the video. Thank you.